ডিসঅর্ডার অফ রিডিং মানে আমি পড়তে পারছি না। আমাদের একটা কাগজ দেওয়া হলো, সে কাগজটা আমি কি করতে পারছি না, পড়তে পারতেছি না। এই যে পড়া যে পারতেছি না, এটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো, ডিসঅর্ডার অফ রিডিং। प्रोसेसेस ऑफ रीडिंग जो है उसमें दो होते हैं हमारे पास होल वर्ड रीडिंग और फोनेटिक रीडिंग। होल वर्ड रीडिंग का क्या मतलब होता है, जब आप किसी भी वर्ड को एज अ होल रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा वर्ड आप देखते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, आप उसको समझते हैं। তাহলে একটা হলো হোল ওয়ার্ড রিডিং, মানে হলো যেমন ধরো সাইট রিডিং। আচ্ছা, তো এই শব্দটা কিন্তু হোল ওয়ার্ড, সাইট রিডিং এটা হোল ওয়ার্ড না। আর ফোনেটিক ওয়ার্ড কি হবে? ফোনেটিক ওয়ার্ড যেমন ধরো নিচে এটা বলতেছে যে হ্যাঁ গ্লাভ, ট্রিস, হ্যাঁ চাইন বা চিন্ট, তাই না? এই যে শব্দগুলো কিন্তু আমরা এক একটা অক্ষর দেখে দেখে আমরা উচ্চারণ করতেছি, এটা হলো ফোনেটিক রিডিং। আর আগেরটাও কি বলছি? হোল ওয়ার্ড রিডিং, হোল ওয়ার্ড রিডিং। इस तरह, ठीक है। तो रीडिंग डिसऑर्डर्स को लेकर वो क्या होती है, डिसलेक्सिया। তাহলে এই যে আমরা যে উচ্চারণ যে আমরা করতে পারতেছি না, পড়তে পারতেছি না, এটা কি বলে? ডিসলেক্সিয়া। কি বলি আমরা? এই ডিসলেক্সিয়াটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। তাহলে একটা হবে অ্যাকওয়ার্ড ডিসলেক্সিয়া আর একটা হবে ডেভেলপমেন্টাল ডিসলেক্সিয়া। ডেভেলপমেন্ট ডিসলেক্সিয়া হলো একটা বাচ্চা, ধরো বাচ্চাটার বয়স মনে করো সাপোজ 1.5 বছর, এই সময় কিন্তু বাচ্চা ছোটো ছোটো ওয়ার্ড বলতে পারে, বাবা, মা, দাদি, নানি। 3 বছর পর কিন্তু বাচ্চা পুরো শব্দ, সেন্টেন্স সব বলতে পারে। তাহলে ধরো কোনো কারণে তোমার এই বাচ্চাটার ব্রোকাস এরিয়ার সমস্যা, প্রাইমারি অডিটরি এরিয়ার সমস্যা, তখন কিন্তু বাচ্চাটা এই শব্দগুলো বলতে পারবে না। তাহলে কারণ তার ওই জায়গাগুলো ডেভেলপ হয়নি, ভালো ডেভেলপ না হওয়ার কারণে তার এই সমস্যাগুলি হচ্ছে। ঠিক আছে? এবার আসলে অ্যাকওয়ার্ড ডিসলেক্সিয়া মানে হঠাৎ করে হয়েছে, হঠাৎ করে। এটা আবার কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? 3 ভাগে। একটা হলো সারফেস ডিসলেক্সিয়া, একটা হচ্ছে ফোনেটিক ডিসলেক্সিয়া, একটা হলো তোমার ডাইরেক্ট ডিসলেক্সিয়া। এই যে সারফেস ডিসলেক্সিয়া, একটা হচ্ছে ফোনোলজিক্যাল ডিসলেক্সিয়া, আর হলো ডাইরেক্ট ডিসলেক্সিয়া। আমরা এখন এরা বলবো ডাইরেক্ট ডিসলেক্সিয়া মানে হলো নিচ থেকে আসি, সে খুব ভালো করে সবই বলতে পারবে। इसमें हमारे पास पहली टाइप क्या है, सरफेस डिसलेक्सिया, ठीक है। फिर हमारे पास होता है फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया और उसके बाद हमारे पास होता है डायरेक्ट डिसलेक्सिया, ठीक है। इन तीनों को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, सरफेस डिसलेक्सिया, इनर डेफिसिट इन होल रीडिंग। इसमें क्या है कि हमने बात की थी प्रोसेस में, क्या है कि होल वर्ड जब आप रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब पर्सन जो है वो होल वर्ड रीड करने में उसको इश्यू आ रहा हो तो हमारे पास सरफेस डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। सरफेस का क्या मतलब होता है कि ओवरऑल जो मतलब एक सरफेस होती है, ठीक है, एक ओवरऑल होल। तो जब होल वर्ड को रीड करने में इशू आ रहा होगा तो हमारे पास सरफेस डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। कॉज बाय द लिगेंड, और इसमें इशू कहाँ पर आ रहा है, इंजरी कहाँ पर हो रही है, लेफ्ट लेटरल टेम्पोरल लोब में, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग जो है वो एरर्स रिलेटेड टू द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द वर्ड, मतलब वो सही से वो वर्ड को लिखे हुए को उनकी विजुअल इनपुट ठीक नहीं जा रही होगी, वो एज अ होल उसको नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है। पेशेंट्स विद सरफेस डिसलेक्सिया हैव डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स एज अ होल, ठीक है। फोनोलॉजिकल डिसलेक्सिया में क्या है, फोनोलॉजिकल की हमने बात की कि जो वर्ड्स की साउंड्स होती हैं, ठीक है, तो ये वाले जो लोग होते हैं कि एज अ होल तो उसको देख सकते हैं लेकिन उसको এটা এরকম যে তোমার ভিশন, এই যে আমাদের ব্রেনের যে 18 নম্বর এরিয়া, এখন 18 নম্বর একটা ছবি আমাদের দেখতেছি লেখা। হ্যাঁ, এখন এই সারফেস ডিসলেক্সিয়া মানে হলো একটা ওয়ার্ড সে সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতে পারতেছে না, সমস্যা হচ্ছে। কথার কথা লেখা আছে মনে করো ময়মনসিংহ, এমন শব্দটা সে ভালো মতো বলতে পারতেছে না, উচ্চারণ করতে পারতেছে না। কেন পারতেছে না? কারণ ওই ময়মনসিংহ শব্দটা তার ভিজুয়াল এরিয়া দেখতেছে তার চোখ 17 নাম্বার, কিন্তু 18 যে তার অ্যাসোসিয়েশন করবে সে অ্যাসোসিয়েশন ঠিকমতো হচ্ছে না, অ্যাসোসিয়েশন ঠিকমতো হচ্ছে না, যার ফলে শব্দটা তাই সে কী করবে না, সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবে না, উচ্চারণ সমস্যা হবে। সমস্যাটা কোথায়? অক্সিপুটাল। কোথায় সমস্যা তার? অক্সিপুটে, মানে আমাদের যেই ডিজাইন এরিয়া আছে, অ্যাঙ্গুলার এরিয়া তার সমস্যাটা, ঠিক আছে। এর ফলে কিন্তু শব্দটা সে ভালো করে উচ্চারণ করতে পারতেছে। এবার আসো যে ফোনোলজিক্যাল ডিসলেক্সিয়া, সে শব্দটা ভালো করে বলতেছে বাট এইটা এই সাউন্ডগুলো তার কোনো বোধগম্য হচ্ছে না। না ভুল বলতেছি আমি, দাঁড়াও ফোনটা
सुने यार, उसका जो एक एक लेटर है, ठीक है, अलग अलग एक जो लेटर है उसको फोनीम्स के थ्रू, उसके साउंड्स के थ्रू उसको नहीं देख पाते, ठीक है। इसमें जो इशू है वो कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट फ्रंटल लोब में, ठीक है। स्टडी फाउंड दैट फोनोलॉजिकल रीडिंग, जब हम फोनोलॉजिकली किसी वर्ड, এটা অর্থ হলো এরকম যে শব্দটা উচ্চারণ, হ্যাঁ, যেন ময়মনসিং, এই শব্দটা সে দেখতেছে উচ্চারণ করতেছে, কিন্তু ময়মনসিং শব্দটা যে উচ্চারণ যেভাবে হবে, কোনটা কোন দিকে হবে, এটা তার সেভাবে সে বলতে পারতেছে না। কেন? তার ওই যে প্রাইমারি অডিটরি এরিয়া, ব্রোকাস এরিয়া তার সমস্যা। এখানে কিন্তু অক্সিপিটার সমস্যা, ডিজাইনের সমস্যা নাই। ফ্রন্টাল এবং প্রাইমারি অডিটরি এখানে এক্সনারের সমস্যা না, ঠিক আছে। ফোনোলজিক্যালি ব্রোকাসের সমস্যা হবে। আর ধরো তোমার ডাইরেক্ট ডিসলেক্সিয়া মানে হচ্ছে সব সুন্দর সুন্দর করে বলছে, উচ্চারণ সব ঠিক আছে, বাট কী যে বলতে তার মাথা ढुकতেছে না। लेटर्स को देख देख के पढ़ रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रोकास एरिया और लेफ्ट इंसुलर रीजन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ब्रोकास एरिया जो है वो क्या है, डेफिसिट इन लैंग्वेज प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रोकास एरिया जो है वो लैंग्वेज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो इंसुलर रीजन है हमारे पास वो किस में इन्वॉल्व होता है, कॉन्शियसनेस में, ठीक है। डाइवर्स फंक्शंस जिस तरह परसेप्शन, मोटर कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉग्निटिव, इन सब में जो है वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट डिसलेक्सिया, ठीक है। डायरेक्ट डिसलेक्सिया में क्या होता है, एबल टू रीड अलाउड, ठीक है। ये चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं, उनको ऊंचा भी पढ़ सकते हैं, एज अ होल भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इशू होता है वो क्या होता है कि ये उनकी जो स्पीच होती है वो मीनिंगलेस होती है, ठीक है। वो समझ नहीं पा रहे होते, अनएबल टू अंडरस्टैंड, वो उसको पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उसको समझ नहीं पा रहे होते, ठीक है। आफ्टर सस्टेनिंग अ स्ट्रोक दैट डैमेज इज फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, मतलब टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब लेफ्ट वाले, उनमें जब इशू आ रहा होता है तो उससे ये हमारे पास होता है पेशेंट लॉस एबिलिटी टू कम्युनिकेट वर्बली, ठीक है। वो ठीक से वर्बली जो मीनिंगलेस हो जाता है ना, मतलब वो मीनिंग नहीं कन्वे कर पा रहा होता है। তাহলে আমরা কী শিখলাম এতক্ষণ ধরে? আমরা स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं बिलिंगुअल ब्रेन की। बिलिंगुअल ब्रेन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड टू लैंग्वेजेस। हमारी ब्रेन की ये एबिलिटी की जिसके जरिए हम दो लैंग्वेजेस जो है, আমরা পুরো পিওর অ্যালেক্সিয়া, কি পড়বো আমরা? পিওর অ্যালেক্সিয়া সমস্যা হবে। এবার আসলে ফোনোলজিক্যাল ডিসলেক্সিয়া কী হবে? উচ্চারণগত সমস্যা হবে। এটা কোথায় সমস্যা? ব্রোকাস এরিয়ার সমস্যা। আর সব বলতে পারতেছে, সব উচ্চারণ করতে পারতেছে, বাট কিছুই বুঝতেছে না। এটা কোথায় সমস্যা? ডিরেক্ট দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কেন হবে? ব্রোকাস এবং টেম্পোরাল, ব্রোকাস এবং টেম্পোরাল লোবে দুইটারই সমস্যা হবে, দুইটাতেই সমস্যা হবে, ঠিক আছে না? এবার আমরা পড়তেছি অ্যালেক্সিয়া। কি পড়তেছি আমরা? পিওর অ্যালেক্সিয়া। उनको समझ भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बिलिंगुअल ब्रेन, ठीक है। तकरीबन हम सभी का बिलिंगुअल है, क्योंकि हम सब क्या कर सकते हैं, दो लैंग्वेजेस सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हम उर्दू इंग्लिश सब कुछ बोल रहे हैं, तो ये क्या है, द सेल, इसमें होता क्या है, द सेल असेंबलीज दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स आर इंटरमिंगल्ड विद द सेल असेंबलीज दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स वी ऑलरेडी नो। इसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज हम ऑलरेडी जानते हैं उसकी हमारे माइंड में क्या होता है, कुछ सेल असेंबलीज बनी हुई होती है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन की। और जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी जो सेल असेंबलीज होती हैं, वो जो प्रीवियस सेल असेंबलीज होती हैं जो पहले हमारे होती हैं माइंड में, उनके साथ इंटरमिंगल कर जाती हैं, ठीक है। वो दोनों आपस में इंटरमिंगल हो जाती हैं, तो इससे फिर क्या होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग होती है उनके साथ हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम दोनों लैंग्वेजेस को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास जो पहली लैंग्वेज है या फिर जो न्यू हम सीख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के लिए ब्रेन का एक ही पार्ट इन्वॉल्व होता है, सेम ब्रेन रीजन इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। प्योर एलेक्सिया क्या होता है? प्योर एलेक्सिया होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड विदाउट लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है वो ठीक से पढ़ नहीं पाता चीज़ों को, ठीक है, रीड नहीं कर पाता, लिख पाता है, सब कुछ कर पाता है, लेकिन रीड नहीं कर पाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाकी ये जो लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स होती हैं वो बिल्कुल इसमें अफेक्ट नहीं होती हैं, जिस तरह नेमिंग और रिपीटिशन, ऑडिटरी कम्प्रीहेंशन, सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। सिर्फ जो इशू आ रहा होता है वो किसमें होता है कि पर्सन जो है वो रीड नहीं कर पा रहा होता, अपनी लिखी हुई चीज़ों को भी वो रीड नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। इसमें डिज़ाइन ने कहा था, इस मतलब वो सारे ये जो होती हैं इसमें सिम्टम्स होते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया इस बीमारी को प्योर एलेक्सिया, या फिर हम इसको प्योर वर्ड ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ वर्ड्स को देख नहीं पा रहा, मतलब देख पा रहा है लेकिन क्या है कि वो उनको रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो इशू होता है वो कहाँ पर होता है, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इन दोनों में इशू हो रहा होता है जिससे जो है वो प्योर एलेक्सिया
कॉज हो रहा होता है, ठीक है। पेशेंट जो है वो इसमें क्या होता है कि राइट कर सकता है, ठीक से चीज़ों को लिख सकता है, लेकिन सिर्फ क्या मसला होता है कि वो रीड नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही उसने जो चीज़ लिखी है उसको वो समझ नहीं आती, तो वो रीड क्या करे उसको, ठीक है, उसको रीड नहीं कर पाता। सम ऑफ हिज ऑन राइटिंग ही कुड नॉट, मतलब उन्होंने क्या किया कि अपने पेशेंट को उसकी खुद की लिखी हुई चीज़ें भी दिखाई, लेकिन वो उनको रीड नहीं कर पाया। ऑल दो पेशेंट्स विद प्योर एलेक्सिया कैन नॉट रीड बट दे कैन रिकॉग्नाइज वर्ड्स। जब भी हम उनको कोई वर्ड सुना कर बोलें, ठीक है, स्पेलिंग बोलें, सब कुछ सुनाए उन्हें कुछ भी वर्ड, तो वो उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फलां वर्ड है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ वर्ड वो रीड नहीं कर पाते, ठीक है। दे हैव नॉट लॉस्ट देयर मेमोरीज ऑफ द स्पेलिंग ऑफ वर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको भूल गए कि ये स्पेलिंग किस वर्ड के हैं, उनकी मेमोरीज भी बिल्कुल ठीक होती हैं, ठीक है। सिर्फ जो इशू होता है कि वो उनको रीड नहीं कर पा रहे होते। तो ये क्या है कि हमारे पास परसेप्चुअल डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब वो वर्ड्स को, लिखे हुए वर्ड्स को परसीव नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। और ये हमारे पास प्योर वर्ड डेफनेस के साथ रिलेट करता है, लेकिन क्या है कि प्योर वर्ड डेफनेस जो होती है उसमें हमारे पास जो होता है इशू जो है वो किसके साथ होता है, ऑडिटरी इनपुट के साथ होता है, ठीक है। मतलब वो लोग क्या होते हैं कि वो ठीक से किसी एक वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, सुन नहीं पा रहे होते, तो वो ऑडिटरी में आ रहा होता है, मतलब वो सुन रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि वो देख तो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इशू फिर भी किसके साथ है, वीगन के साथ ही है, कि मतलब उनको वो लिखा हुआ वर्ड उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये विजुअल इनपुट के साथ है कि हमारी आंखें जो है वो ठीक से आगे इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोसेस करें, लेकिन जो हमारे पास प्योर वर्ड डेफनेस होता है वो ऑडिटरी इनपुट के साथ होता है कि जो वर्ड हमने सुने वो ठीक से आगे इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पा रहे। দুটো কথা, একটা হলো পিওর ওয়ার্ড ডেফনেস, তখন কিন্তু আমি শুনতেছি না। ধরো পিওর ওয়ার্ড ডেফনেসটা এরকম, খুব মন দিও কথাটা, পিওর ওয়ার্ড ডেফনেস, কথার কথা, আমি যদি কানের পরীক্ষা করি, আমি যদি শুনি, তুমি যা বলতো সবই শুনি, কিন্তু কোনো স্পেসিফিক কোনো একটা ওয়ার্ড আমি শুনতেছি না। সে এই যে গাড়ির শব্দ যাচ্ছে আমি শুনতেছি, কথা শুনতেছি, কিন্তু একটা কোনো একটা বিষয় আমি, আমার ব্রেন এটা ঢুকতেছে না। কেন? প্রাইমারি অডিটারি। কারণ কোন একটা জায়গায় ওই ওয়ার্ডটা, ধরো আমি বুঝতেছি ও কিছু মুখ লড়তেছে, কথা বলতেছে, সে রাগ হচ্ছে, সব বুঝতেছি, দেখতেছি, আমার সে কিছু শব্দ বলতেছে, ওই শব্দ কী বলতেছে সেটা আমার মাথায় ঢুকতেছে না। কথার কথা, ধরো একটা হলো রিকগনিশন, একটা হলো কম্প্রিহেনশন। ধরো একটা চীনের ভাষা তুমি যদি বারবার শোনো, চীনের ভাষাও শোনো, কোরিয়ার ভাষাও শোনো, একটা সময় বলবা স্যার এটা চীনের ভাষা, এটা কোরিয়ার ভাষা, এটা রিকগনাইজ করলা তুমি, বাট ওই গানটা বা ওই শব্দটা যে কী বুঝাইছে তা তুমি বুঝবা না, কারণ ওইটা, তাহলে ওইটা হলো পিওর ওয়ার্ড ডেফনেস। ডেফনেস শব্দটা তো কিছু বুঝলা না, শুনলা তুমি, তুমি তো কানে কম শোনো না, কানে ঠিক শোনো, বাট পিওর ওয়ার্ড মানে ঠিক ওই গানটাই তুমি শুনতেছো না, কারণ তোমার মেমোরিতে নাই, অথবা তোমার কোনো প্রবলেমের কারণে সেটা তোমার মাথায় নাই, শুনতেছো না, এরকম আর কি, প্রবলেমটা এরকম। তো এখানে পিওর ডেফনেস কিন্তু কোথায়, কোন জায়গায় সমস্যা হবে, প্রাইমারি অডিটরি এরিয়া সমস্যা হবে। আর আমরা এখানে বলছি পিওর অ্যালেক্সিয়া, তাই না? পিওর অ্যালেক্সিয়া কী জিনিস বলতেছি আমরা এখানে, যে ওই শব্দটা, যে শব্দ লেখা শব্দটা আমার অক্সিপোর্টের যে আমাদের যেই 17-18 এরিয়া আছে, সেই 17-18 এরিয়া অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে না, না হওয়ার কারণে আমি সেই শব্দটা পড়তে পারতেছি না। পিওর ওয়ার্ড ডেফনেস, পিওর ওয়ার্ড ডেফনেস হলো যে আমি কিন্তু সবই শুনতেছি, আমাকে তুমি যদি অডিমেট্রি করো, অডিমেট্রি মানে একটা যন্ত্রের মাধ্যমে আমি শুনি কি না, সেই অডিমেট্রি ওকে, আমি শুনতে কোনো সমস্যা নেই, বাট আমি সব গাড়ির শব্দ সবই শুনতেছি, বাট কোনো বুঝতেছি না। আমি শব্দগুলো আমার জানার কাছে কী জানে, আমার কাছে কোনো স্পেসিফিক কোনো শব্দের ক্ষেত্রে আমার কি হচ্ছে, এটা আমার মাথায় আমার বুঝে আসতেছে না। হ্যাঁ, সেভ নাই, আমার আগের মেমোরি সেভ করা নাই, বা থাকলেও, বা নতুন ওয়ার্ডটাও কিন্তু আমরা কি করি, কথার কথা, যেমন ধরো তুমি উকালতি পড়ছো এক সময়, তোমার উকিলের অনেক বিষয় তোমার ব্রেন সেভ করা আছে, তুমি কিন্তু সহজে বুঝবা, বা নতুন শব্দ কিন্তু তোমার আগের শব্দের সাথে মিলিয়ে তুমি কিছু বোঝার চেষ্টা করো। যেমন ধরো উকিলের কোনো বিষয় তুমি আগে পড়ছো, জানছো, নতুন উকালতি কোনো বিষয় হলেও কিন্তু তুমি ওইটার সাথে রিলেট করে বোঝার চেষ্টা করো, এটা তোমার নর্মাল ফিজিওলজি। বাট এখানে কী হবে, নতুন শব্দ বুঝতে গেলেও তোমার এই অ্যালাইনটা ঠিকমতো হয় না, এই অ্যালাইনটা ঠিকমতো না হওয়ার কারণে আমাকে বোঝায় আসে না, আমার টেম্পোরাল, আমার যেই তোমার প্রাইমারি অডিটরি এরিয়া, আমার যে এই শব্দগুলো বুঝে যে আমি পড়বো, দেখবো, সেটা আমার মাথায় আসে না। আমি এটা কিছুই, আমি মনে করো আমি বুঝতেছি না, আমি এরকমভাবে আমি পড়তে দেখতেছি কিন্তু আমি কিছুই বুঝতেছি না। কারণ কেন বুঝতেছি না, ওই যে বললাম আমার মাথা ওরকমভাবে প্রাইমারি অডিটরি অ্যাসোসিয়েশন হয়ে আমার জিনিস আসতেছে না।